متى ترانا ونراك متى ترانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع کلام ہے قضایہ موجہات، اور موجہات کی بحث کا تعلق بھی قضیہ محصورہ سے ہے. جیسا کہ موجہات سے پہلے والی بحث اور تقسیم، جس میں آپ نے 3 قسمیں بیان کی تھی، حقیقیہ، ذہنیہ اور خارجیہ، وہ بھی محصورہ کی ہی بحث تھی. جب ہم نے محصورہ کو سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا تمام اقسام میں سے، اور تنبیہ تو کر چکے ہیں کہ آئندہ ساری بحثیں محصورہ کے متعلق ہی ہوں گی، تو تغافل سے بچنے کے لیے ایک بار پھر میں نے آج تنبیہ کر دیا ہے کہ میں موجہات کی بحث کا تعلق بھی محصورات کے ساتھ ہے. اور جب لفظ محصورہ بولا جائے تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ محمول کا تعلق موضوع کے افراد کے ساتھ ہے. احسن، پہنچ گئی بات؟ محصورات کے اندر درس کا پہلا نقطہ بیان ہو چکا ہے، اور وہ پہلا نقطہ جو ہے وہ متعلق ہے 2 لفظوں کے تعارف کے بارے میں، اور وہ 2 لفظ یہ تھے قضیۃ القضیہ اور مادۃ القضیہ. ان کو میں رپیٹ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر رپیٹ کریں گے تو پھر اگلا درس ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا. البتہ اصل درس آج کا شروع کرنے سے پہلے ایک اور نقطہ ذرا توجہ فرمائیں گے. آپ منطق کے بعد آپ نے منتقل ہونا ہے کدھر؟ اصول میں یا فلسفے میں. تو اصول میں ایک بحث آتی ہے، ایک بحث کا نام ہے عام اور خاص، اور دوسری بحث کا نام ہے مطلق اور مقید. ٹھیک ہے؟ جب اصول میں آپ پہنچیں گے، یہ دونوں بحثیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. سوال اٹھایا جائے گا کہ مطلق میں اور عام میں ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. تو وہ کہے گا اس کا فرق معلوم کرنے کے لیے آپ منطق کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے؟ جب منطق کی طرف رجوع کریں گے تو منطق میں آپ نے پڑھا ہوگا تو وہاں فرق کا پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے؟ منطق میں نہیں پڑھا ہے تو وہاں پھر آپ واپس آؤ گے تو بھی پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے؟ مشکل سے بیمار میں ہوں، کھانسی آپ سے بولے خدا صحت اسلام کے حالات کیسے چل رہے ہیں. تو درس شروع کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے مطلق اور عام کے درمیان فرق کیا ہے. ہاں جی، توجہ فوکس ہو گئی آپ لوگوں کی؟ اچھا، آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی اندازہ ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ نتیجے دیکھا جائے نتیجے ایک ہی ہے، لیکن الفاظ فرق ہیں. عام کے لیے الفاظ ہوتے ہیں اور مطلق کے لیے خود سیدھا ہوتا ہے. چلو خیر، کوشش کی ہے، جرت کی ہے خان نے. حکمت ہے نا، بلوچ ہیں، جرت کرتے ہیں. اچھا، 3-4 فرق بیان کیے گئے ہیں عام میں اور مطلق. جو مین اور مرکزی فرق ہے وہ توجہ فرما دیے. جس قضیے کو منطق میں محصورہ کہتے ہیں، اور جب لفظ محصورہ بولا جائے ذہن میں کیا آتا ہے؟ محمول کا اسناد موضوع کے افراد کی طرف ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس قضیے کو منطق میں محصورہ کہتے ہیں، اصول میں اسی کو عام کہتے ہیں. نام بدلا ہے، چیز وہی ہے.
ठीक है। दूसरा कुलिया पाकिस्तान में पासपोर्ट, इराक में आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? जवाज। चीज वही है, ठीक है। तो पाकिस्तान में उसका जगह नाम महसूरा है, इराक में उसका जगह नाम आम। वहाँ महसूरा, इधर आम। जिसको वो उसूली आम कहते हैं उसी का ही नाम मंतक में। तो जब वहाँ आम बोला जाएगा तो क्या मुराद होगा? महसूरा, यानी महमूल का ताल्लुक, हुक्म का ताल्लुक। वहाँ लाल हुक्म बोलते हैं, इधर महमूल बोलते हैं। वही महमूल घर जाके क्या हो जाता है? हुक्म हो जाता है। हुक्म का ताल्लुक किसके साथ होगा? मौजू के आसन। पहुंच गई है बात? अच्छा, तो फिर आम किसे कहते हैं? सॉरी, मुतलक किसे कहते हैं? तो अब आम का मद्दे मुकाबिल क्या है? खास। वहाँ आम का मद्दे मुकाबिल खास, ठीक है ना। इधर आम को महसूरा लिया, वहाँ खास को महसूरा जुजिया, ठीक है ना। अब कुल से बाद निकालोगे, जो बाद हो जाएंगे वो महसूरा जुजिया हो जाएगा, जो कुल है वो तुम्हारा महसूरा कुलिया हो जाएगा। आम और खास, ठीक है ना। आम खास साइड पर रखो। अब दूसरा कजिया उठा लो, मुतलक और मुकय्यद। मुतलक और मुकय्यद का ताल्लुक या इतलाक और कायद का ताल्लुक अफराद के साथ नहीं होता, तो फिर किसके साथ होता है? कहता है अफराद की। अब चीजें गिनवा रहा हूँ, तवज्जो फरमाओ। अफराद के ऊपर कुछ हालात वारिद होते हैं। अफराद के का ताल्लुक औकात के साथ होता है, अफराद का ताल्लुक सिफात के साथ होता है, ठीक है ना। तो ये सिफात, ये हालात, ये औकात, इन तीन चीजों का ताल्लुक किसके साथ है? फर्द के साथ। एक ही फर्द की कई हालात है। अभी मरीज हूँ, परसों ठीक था, फर्द एक ही है, हालत दो हो गई है। फर्द नहीं बदला, हालत बदली है। सेहत मरज हालत है। पानी एक है, पहले पाक था, अब नजस हो गया है। निजासत तहरत उसकी हालात हैं, उसकी सिफात है, ठीक है ना। जुमे के दिन नमाज जुमा वाजिब है, बुध के दिन वाजिब नहीं है, औकात है, ठीक है ना। तो नमाज एक ही है, औकात बदल गए हैं उसके, ठीक है ना। तो सफर में आप आधी नमाज पढ़ोगे, घर में हो पूरी पढ़ोगे, हालात बदला है, ठीक है ना। नमाज वही है या मुकल्लफ वही है, हालात बदले हैं। तो ये जो हालात हैं, ये जो औकात हैं, ये जो सिफात हैं, जिन हालात सिफात औकात का ताल्लुक उसी फर्द के साथ होता है। इतलाक और तकीद का ताल्लुक इन हालात से होता है। अगर जमी औकात में, जमी हालात में, जमी हालात में, तब जो है फिर गिनती करने लगा हूँ, जमी औकात, जमी हालात, जमी सिफात में हुक्म उस फर्द के लिए, मौजू के फर्द के लिए साबित रहे, इसे कहते हैं इतलाक, ठीक है ना। बीवी पर बीवी को हक मार देना वाजिब है जमी हालात में। जमी हालात क्या हो सकते हैं? खूबसूरत है तो भी महर देना वाजिब है, खूबसूरत नहीं है तो भी महर देना वाजिब है, बड़े कद की है तो भी महर देना वाजिब है, छोटे कद की है तो भी। हालात से बात है या नहीं है? पढ़ी लिखी है तो भी आप पर उसका महर देना वाजिब है, पढ़ी लिखी नहीं है तो भी। तो हुक्म क्या है? महर देना। महर देना हुक्म है। किसको देना है? ज़ौजा को। ज़ौजा क्या है? फर्द है। उस फर्द के क्या है? हालात है। जमी हालात में ये हुक्म इसके लिए साबित है इतलाक, बाज़ हालात में साबित है तकीद, ठीक है। तो इतलाक और तकीद का ताल्लुक किसके साथ है? औकात के साथ, औसाफ के साथ, ठीक है। अच्छा, इतलाक और तकीद के अंदर एक और सेक्शन भी है। एक ही फर्द जो है उसके अंदर एक जिहा से इतलाक है, दूसरी जिहा से उसके अंदर तकीद है। मसलन हालात के एतबार से मुतलक है, औकात के लिहाज से मुकय्यद हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वहां आप सेक्शन बना सकते हैं, इतलाक और तकीद में सेक्शन बना सकते हो कि एक ही चीज जो है उसके अंदर इतलाक भी मौजूद है लेकिन इतलाक की जिहत कोई और है, तकीद भी उसी के अंदर मौजूद है लेकिन तकीद की जिहत कोई और है।
ٹھیک ہے. جیسے آپ جہت بدل کے زید کو باپ بھی کہہ سکتے ہو, بیٹا بھی کہہ سکتے ہو. باپ کہہ سکتے ہو اس کے اپنی اولاد کے حوالے سے جہاد سے دیکھا جائے گا, کہہ سکتے ہو نہیں کہہ سکتے, تو جہاد بدل گئی ہے. اور زید کو آپ بیٹا بھی کہہ سکتے ہو لیکن اس کے اپنے باپ کی جہاد سے جب دیکھا جائے گا تو جہاد بدلنے سے آپ زید کو دو نام دے سکتے ہو, باپ کا بھی بیٹے کا بھی. تو فرد واحد کو آپ مطلق بھی بول سکتے ہو, مقید بھی بول سکتے ہو. مطلق کسی اور جہاد سے, مقید کسی اور جہاد سے, جب اس کے اندر تعدد جہاد موجود ہو. تمام محصورات کو ہم عام نہیں کہیں گے نا, فقط وہ محصورات میں سے جو کلیہ ہے اس کو ہم, جس طرح آپ نے فرمایا کہ مطلب کل انسان, فرض ہم کہیں کل انسان ناطقون, تو یہاں پہ یہ جو محصورہ ہے یہ کیا ہے, عام ہے. لیکن اگر ہم یہاں پہ بعض کا کہتے ہیں کہ بعض الحیوان انسانوں, تو یہ جو محصورہ ہے یہ کیا ہے, عام نہیں ہے بلکہ کیا ہے, وہ ہے خاص ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایسی میں مثال سمجھ گیا ہوں آپ کا. آپ کہتے ہیں کلو انسان ضاحک الا مریض, الا مریض آپ نے نکال لیا ہے نا, یہ خاص ہو گیا نا. اچھا, آپ کہتے ہیں بعض الانسان ضاحک الا مریض, تو یہاں بھی تو عام خاص آ گیا ہے. تو عام خاص جو ہوتا ہے نا وہ تناسب ہے اس کے اندر. ایک مرتبہ آپ نے کل سے خاص نکالا ہے, استثناء کیا ہے, ایک بار آپ نے بعض سے نکالا ہے, تو پھر یہ جو بعض ہے اس استثناء کے مقابلے میں یہ عام ہو جائے گا, اگرچہ آپ نے کل کے اعتبار سے یہ خاص ہے. جیسے میں نے زائد کے اندر دو سیکشن دیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ عام کے اندر بھی یہ سیکشن جاری کر سکتے ہو. تو بعض افراد جو ہوتے ہیں وہ کل کے اعتبار سے کیا ہے, خاص ہے. پھر انہی بعض سے آپ پھر مزید بعض نکال لیتے ہو, تو جو بعض آپ نے نکالے ہیں پھر ان کے اعتبار سے یہ عام ہو جائے گا, وہ بعض اس کے خاص ہو جائیں گے. ہاں, اضافی, یہ عام اور خاص تو اضافی مفہوم ہے, یہ اس کے مقابلے میں عام ہے. یہ درمیان والا سیکشن جو ہے اس آخری کے مقابلے میں عام ہے, لیکن پہلے کے مقابلے میں خاص ہے. جی ہم بدل گئے. تو اطلاق تک یہ سمجھ میں آ گئی نا. اچھا, اطلاق اور عام کے درمیان, اطلاق اور عموم کے درمیان مزید فرق بیان کیے ہیں علماء نے, مگر وہ اضافی تشریحات ہیں, مرکزی فرق یہی ہے, میں نے آپ کو دے دیا ہے. آگے پہنچنے کے بعد پھر جب آپ واپس آئیں تو آپ کے پاس حوالہ موجود رہنا چاہیے. ہم قضیہ محصورہ پڑھ رہے ہیں, یعنی اصول کی زبان میں عام خاص پڑھ رہے ہیں. آسان. محصورہ کے اندر پھر تقسیم ہے قضیہ موجہ. محصورہ وہ محصورہ جس کی جہت بیان کی جائے اسے موجہ کہتے ہیں, اور جس محصورے کی جہت صراحتاً ذکر نہ کی جائے اس کو مطلق کہتے ہیں. مادہ کیا ہوتا ہے یہ بیان ہو چکا ہے, اس کو میں رپیٹ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جہاد کی کئی قسمیں ہیں. آج کا درس شروع ہو گیا جی, میں نے وہ جو گراؤنڈ بنانا تھا بن چکا ہے, کافی ہے. جہاد کی متعدد اقسام ہیں. ان متعدد اقسام میں سے جو جہاد کی پہلی قسم ہے اس کا نام ہے ضرورت. پہلی جہاد کا نام کیا ہے؟ ضرورت. آج سارا تبصرہ تشریح اسی ضرورت کے بارے میں کریں گے, ٹھیک ہے. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ محمود موضوع کے فرد کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے, بات سمجھ گئے ہو. موضوع کا فرد, یہ میں جو تصویر بنا رہا ہوں یہ تین چیزیں آ گئی, محمود, موضوع کا فرد, ٹھیک ہے نا. کلو انسان ناطق, ناطق انسان جو کہ موضوع ہے اس کے فرد یعنی زید کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو ضرورت کیا ہے؟ محمول موضوع کے فرد کے لیے ضروری ہے. اور جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ لا ينفق ہوتی ہے. لا ينفق سمجھتے ہیں, جدا نہیں ہو سکتی ہے, وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی ہے. اچھا, تو محمول موضوع کے فرد کے لیے ضروری ہے, یعنی موضوع کا جو فرد ہے اس فرد سے یہ محمول کبھی جدا نہیں ہو سکتا ہے. اب اس ضرورت کے اندر چار اقسام ہیں.
कितनी किस्में हैं ज़रूरत की? 4 4 किस्में हैं। हर किस्म आपको एक कजिया मुवज्जा देगी। ज़रूरत की 4 किस्में हैं, हर किस्म आपको एक कजिया मुवज्जा देगी। अब वो 4 किस्में जो हैं ज़रा सुनो, फिर मिसालों की तरफ बाद में मैं आ जाता हूँ। महमूल मौजू के फर्द के लिए जरूरी है। पहली किस्म जाती तौर पे जरूरी है या किसी वास्ते की वजह से जरूरी है। जाती किसके मुकाबले में बोला है मैंने? वास्ते के मुकाबले। ये महमूल मौजू के फर्द के लिए जरूरी है या बिलवास्ता यानी डायरेक्टली जाती तौर पे जरूरी है, या कोई वास्ता है उस वास्ते की वजह से जरूरी है। अगर वो हो तो ये जरूर मतलब उसकी लाजिम हो। हाँ, वो वास्ता जो है अगर है तो वो होगा तो ये तो महमूल इस मिसाल फर्द के लिए जरूरी होगा। अगर वो वास्ता नहीं है तो ये भी तो फिर ये जरूरी नहीं होगा। ठीक हो गई बात? ये जो वास्ता है ना, ये शर्त है किस चीज की? इस महमूल के वजूद की, इस फर्द के लिए जरूरी होने की ये शर्त है। कौन शर्त है? ये जो वास्ता है। वास्ता है। अच्छा, पहली किस्म क्या बनाई हमने? जाती तौर पे खुद मौजू होती है। मौजू के फर्द के लिए ये महमूल जाती तौर पे जरूरी है। ठीक, जाती तौर पर जरूरी हो इसे कहते हैं जरूरिया जातिया या जरूरिया मुतलका। 2 नाम है इसके। ठीक है, जरूरिया जातिया या जरूरिया मुतलका। ये कजिया बोला जाता है उन महमूलात में जो महमूलात कुलियात खमसा में से या तो पहली 3 में से कोई एक ले आओ। पहली 3 समझ गए हो? या फिर आप मुफारकात में सॉरी अजियात में से लवाजिमात ले आओ। ठीक है ना? अजियात की 2 किस्में है ना, लाजिम और मुफारक। ठीक, तो ये कजिया जरूरिया कब बोला जाएगा? जब महमूल आप कुलियात जातिया में से ले आओ या अजियात वो जो लवाजिम है जरूरी है। मद मुकाबिल मुफारिकात, अजियात मुफारिकात और अजियात लाजिमा। जो अजियात लाजिमा है वो महमूलात में आप इस्तेमाल करते हो तो उस सूरत में कजिया जरूरिया जातिया बोला जाता है या जरूरिया मुतलका बोला जाता है। समझ आ गई है ना? मिसाल मेरे ख्याल आप खुद बना लेंगे क्योंकि मैंने आपको जो है बहुत आसान बना दिया है। मैं इसको साइड पे रखने लगा हूँ, आप दूसरा कजिया उठा लो। ठीक है ना? जिसमें महमूल मौजू के फर्द के लिए जरूरी है जाती तौर पे नहीं, कोई चीज़ वास्ता है, वास्ता मौजूद होगा तो ये महमूल जरूरी होगा वरना नहीं होगा। और ये जो वास्ता है ये उस महमूल के मौजू के लिए मौजू के फर्द के लिए जरूरी होने की शर्त है। ठीक है, इसे कहते हैं मशरूता अम्मा। अम्मा इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि एक और मशरूता भी आ रहा है, उसके साथ इसकी जब निस्बत बनाएंगे वो खासा है, ये आमा है। लफ्ज़ आमा का इशारा उस आने वाली किस्म के साथ जो निस्बत बनेगी उस निस्बत की तरफ हो गया। मशरूता क्यों बोला है? क्योंकि वो जो वास्ता है इस महमूद के जरूरी होने की शर्त है। ठीक है, मिसाल क्या बनेगी? कुल्लो कातिब मुतहर्रिकुल असाबिह बिल ज़रूरत, हर कातिब मुतहर्रिकुल असाबिह। ठीक है ना? और मुतहर्रिकुल असाबिह होना ये महमूल कातिब का जो फर्द है, कातिब का फर्द कौन है? ज़ायद। उस ज़ायद के लिए जो कातिब का मिस्ताक है, उस ज़ायद के लिए मुतहर्रिकुल असाबिह का महमूल ज़रूरी है। लेकिन उस महमूल के ज़रूरी होने की, उस महमूल के इस ज़ायद के लिए ज़रूरी होने की, ज़ायद की तरह क्यों लेकर गया हूँ मैं? कज़िया महसूरा है ना, हर बात तो है, मुझे रिपीट ना करना पड़े ना जेल में। ज़ायद की तरफ क्यों लेकर गया? मुतहर्रिकुल असाबिह का इसनाद किधर लेके गया हूँ मैं? मुतहर्रिक का जो मिस्दाक है, सॉरी कातिब का जो मिस्दाक, कातिब का मिस्दाक कौन है? ज़ायद। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो मुतहर्रिकुल असाबिह ये महमूल है, ये महमूल जरूरी है ज़ायद के लिए।
ठीक, लेकिन शर्त है, वो शर्त मौजूद होगी तो फिर ये महमूद ज़ायद के लिए ज़रूरी होगा, वगरना ज़रूरी नहीं। वो शर्त क्या है? ठीक है ना, वो शर्त यह है कि ज़ायद जब लिखता हूँ जब किताबत में मसरूफ हो, किताबत शर्त है, ये वास्ता है, ये वास्ता मौजूद होगा तो फिर ये महमूद ज़ायद के लिए ज़रूरी होगा, ये वास्ता मौजूद नहीं है तो फिर ये महमूद इसके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब हमने मिसाल जो दिया है, बज़ाहिर ये मिसाल हमलिया किया है, कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिक बला साबिल, बज़ाहिर ये मिसाल किसकी है? हमलिया की। हकीकत में अगर देखा जाए तो जो कज़िया मैंने बयान किया है मशरूतामा, हकीकत में ये हमलिया नहीं होता, हकीकत में ये कज़िया शर्तिया होता है, और ये तकसीम पहले बयान हो चुकी है। कज़िया की दो किस्में हैं, हमलिया और शर्तिया। ठीक है, तो हकीकत में ये मशरूता जो होता है ये हकीकत में क्या होता है? कज़िया शर्तिया होता है। जब हकीकत में कज़िया शर्तिया है तो आप इस हमलिया को शर्तिया की तरफ वापस पलटाओगे तो क्या बनेगा? इन काना ज़ैदुन कातिबन फहुवा मुतहर्रिकुल असाबे। शर्तिया बना है नहीं बना? तस्वीर वाज़ी हो गई है? इन काना ज़ैदुन, अब ज़ैद निकाल के लिए आए आप, ज़ैद क्यों निकाल के लिए आए? क्योंकि वो महसूरा था, वो कज़िया महसूरा था, वो हमलिया महसूरा था, जिससे हमने ये जो शर्तिया बनाया है वो हमलिया महसूरा था। महसूरा में इस्नाद किधर होता है? तो अब वही ज़ैद जिसकी तरह महमूल का इस्नाद जा रहा था वो ज़ैद अब सामने आ जाएगा। इन काना ज़ैदुन कातिबन, कदम हो गया, ताली ले आओ, फहुवा मुतहर्रिकुल असाबे। ये शर्तिया जो है इसका फिर हमने वो हमलिया निकाला, कुल्लु कातिब मुतहर्रिकुल असाबे बेज़रूरत है। तो मशरूता समझ में आ गया है? ठीक है। अच्छा, तो ये जो मशरूता है मद्दे मुकाबले किसके है? ज़ातिया के, जहाँ पर महमूल मौजू के फ़र्द के लिए ज़रूरी है, ज़ाती तौर पे ज़रूरी है, और ये ज़ाती तौर पे ज़रूरी नहीं है, बिल वास्ता ज़रूरी है। ज़ाती मद्दे मुकाबले वास्ता। अच्छा, कितनी किस्में ज़रूरत की पढ़ ली आपने? दो पढ़ ली। अच्छा, दो और है। महमूल मौजू के फ़र्द के लिए, मौजू के मिस्दाक के लिए ज़रूरी है, लेकिन किसी वक्त के अंदर ज़रूरी है। ठीक है, किसी वक्त के अंदर ज़रूरी है। जब वक्त के अंदर ज़रूरी है तो वक्त की दो किस्में हैं। ये वक्त या कोई मुअय्यन वक्त है, या ये वक्त गैर मुअय्यन वक्त है। महमूल, फिर रिपीट करो मेरे साथ, पढ़ाई दो ना यार आज। महमूल मौजू के फ़र्द के लिए ज़रूरी है, लेकिन किसी एक वक्त में ज़रूरी है, और जिस वक्त में ज़रूरी है उस वक्त की दो किस्में हैं। वक्त मुअय्यन होगा या गैर मुअय्यन होगा। अगर मुअय्यन वक्त है इसे ज़रूरिया वक्तिया कहते हैं, गैर मुअय्यन वक्त है इसे ज़रूरिया मुनताशिरा कहते हैं। मुनताशिरा का लफ्ज़ इंतिशार से निकला है, जिसमें वक्त फैला हुआ, यानी वक्त फैला हुआ है, उस वक्त का कोई तशख़्ख़ुस नहीं है कि ये वाला वक्त। मुनताशिरा जो उस वक्त के गैर मुअय्यन वक्त की तरफ इशारा है लफ्ज़ मुनताशिरा। ठीक है, मिसालें बयान करो इसकी। कुल्लु कमर है मुनखसिफ, ठीक है ना, वह कहाँ फी वक्तिल हैलुलती, कमर जो है मुनखसिफ है, चाँद मुनखसिफ यानी वो गिरा है, चाँद को गिरान होती है, लेकिन किस वक्त में? तो गिरहन का होना ज़रूरी है, गिरहन महमूल है, ये ज़रूरी है, कमर के मिस्ताक के लिए ज़रूरी है। एक वक्त में ये महमूल ज़रूरी है, और वक्त कौन सा है? वक्तुल हैलुलती, वो ये वक्त है जिसमें ज़रूरी है। अच्छा, कुल्लु सलातुल जुमाते वाजिबातुन, यौमल जुमाते, ठीक है, नमाज़ जुमा वाजिब है अगर आप इस फतवे के कायल हैं तो। हाँ, यौमल जुमा, कुल्लु सलातुल जुमाते वाजिबातुन यौमल जुमाते, वजू ज़रूरी है, किसके लिए? यौमुल जुमा के मिस्दाक के लिए,
सॉरी सलातुल जुमा के मिस्दाक के लिए। मिस्दाक क्या होता है? जो अमल अंजाम देते हैं वो मिस्दाक होता है। जो इंसान मुकल्लफ अमल अंजाम देता है ये इंसान का अमल के मिस्दाक है। किसका? लफ्ज़ सलात का। तो सलातुल जुमा के मिस्दाक के लिए वजू जरूरी है। कब जरूरी है? जुमे के हैं? वक्त मुअय्यन वक्त वक्त मुअय्यन होना है, यौमुल जुमा है। ये तो वजूब जो है ये तो वजूब अकली तो नहीं है ना, मतलब क्योंकि नमाज जुमा का वाजिब होना इस वक्त में यानी अकली मंतिकी के एतबार से तो ये वाजिब नहीं है ना, वैसे शरीयत के एतबार से मतलब हम क्या कहें कि ये क्या है, ये नमाज वाजिब है नमाज जुमा एक ख़ास वक्त में। और ठीक है समझ। महमूल का मौजू के मिस्दाक के लिए ज़रूरी होना हम बयान कर रहे हैं। वो अकल की नज़र में ज़रूरी है, शरीयत की नज़र में ज़रूरी है, इस चीज़ को दखालत नहीं है ज़रूरी होने में। चलिए मूवी हाँ वो मुहिम नहीं है। ठीक हो गई बात? आपका सवाल का जवाब हो गया। वो अकल की नज़र में ज़रूरी है तो ठीक है, शरीयत की नज़र में ज़रूरी है तो भी ठीक है, और फ़ियाम की नज़र में ज़रूरी है तो भी ठीक है, आपके कानून इदारे का कानून बना दिया है आपने तो भी ज़रूरी है। ठीक है ना? बाबु मुगलाकुन बाद सात अशरत, ठीक है ना? बाप का ख्वाबगाह की का दरवाज़ा जो है मुगलक होना ज़रूरी है। कानून बना दिया ना। कानून ज़रूरी होता है या जायज़ होता है? तो ज़रूरी होता है, कवानीन ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ख्वाबगाह का कानून है। अच्छा, जो कज़िया ज़रूरी होता है ना, महमूल का मौजू के लिए ज़रूरी होना हम बयान कर रहे हैं। अब ज़रूरी है अक्ल की नज़र में, ज़रूरी है शरीयत की नज़र में, ज़रूरी है उर्फ़ आम की नज़र में, ज़रूरी है इदारे की नज़र में। वो किसकी नज़र में ज़रूरी है वो उसको दखल नहीं है, मुहिम है कि कज़िया ज़रूरी है। ठीक है, तो कज़िया जो ज़रूरिया वक्तिया होता है ना, आपके पास जो वाजिबात वक्तियाँ हैं, वाजिबात वक्तियाँ समझते हो, यानी शरीयत के वो वाजिबात जो एक ख़ास वक्त के अंदर वाजिब होते हैं, वक्त गुजर जाए तो फिर वो कज़ा हो जाते हैं। वो सब के सब किसकी मिसाल हैं? ज़रूरिया वक्तिया की। तो आप सिर्फ वो जो वक्तुल हैलुला वाली मिसाल जो है ना, उस पर अपने आप को जो है वो टिकी लगा के बैठ नहीं जाना है। ठीक है ना? थोड़ा घूमो फिरो, बाजार को चेक करो और भी बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। ज़्यादा मिसालों की तरफ मैं इसलिए इशारा देता हूँ ताकि आप कानून लेके फिर घूमते ना रहें, आपको उसको तत्वीक देने की जगह ही ना मिले। तो मिसाल होती है तत्वीक देने के लिए, भी देखो इस मिसाल में ये कानून तत्वीक हो गया है, तो उसके अलावा ना कोई मिसाल है ना तत्वीक देने की जगह है। भाई आपको समझ होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ ये तत्वीक दिया जा सकता है। वैसे अगर ने सवाल किया है कि अखिल लज़ूम है या शरीक लज़ूम, तो बहुत सारे मवारद आपके सामने आप खोल के सामने आ गए हैं जहाँ आप इस कज़िया ज़रूरिया वक्तिया को तस्दीक दे सकते हो। ठीक हो गई बात? अच्छा, मध्य मुकाबले दूसरी किस्म क्या है? महमूल मौजू के मिस्दाक के लिए ज़रूरी है वक्त में, मगर वो वक्त मुअय्यन नहीं है। ठीक है, तो इसकी मिसालें आप शरीयत के वो तमाम वाजिबात की दे सकते हो जिनका वक्त मफ्तूह है। कुछ वाजिबात ऐसे हैं ना जिनका वक्त मफ्तूह है, जब चाहो अंजाम दे सकते हो, ऐसे हैं या नहीं है? वाजिबात वक्तियाँ भी हैं, ये उसूल के अंदर तकसीम मौजूद है ना कि नहीं है मौजूद? वाजिबात कुछ वक्तियाँ हैं और कुछ वाजिबात गैर वक्तियाँ, यानी उनका वक्त शरीयत की तरफ से मुअय्यन नहीं किया गया है। कोई मिसाल दे दो फिर। किसी की मदद करना। हाँ, मतलब आपने नज़र मानिया है कि भाई नज़र पूरी होने की सूरत में मैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में जाऊँगा। ठीक है ना? नज़र आपकी पूरी हो गई है। नज़र पूरी होने के बाद आपको इसके लिए वक्त मुअय्यन नहीं है। आप जुम्मे को जा सकते हो, हफ्ते को जा सकते हो, इस महीने जा सकते हो, अगले महीने जा सकते हो। ठीक हो गई बात? वहाँ कदा आपने रोज़ा रखने की नियत मानी, उसके लिए आपने वक्त मुअय्यन नहीं किया है नियत में, तो आप जिस दिन भी चाहो वो रख सकते हो। कज़ा नमाज़ें होंगी इस तरह, या कज़ा नमाज है, कज़ा नमाज जो है वो भी तो वाजिब है। वाजिब है तो आप उसको अदा करने के लिए अब शरीयत की तरफ से वक्त मुअय्यन नहीं है, जिस वक्त भी चाहो आप उसको अंजाम दे सकते हो। आपके पास किसी ने अमानत रखी है तो अमानत उसको लुटाना वाजिब है, मगर ये कि वक्त मुअय्यन नहीं है, जब चाहो तुम उसे वापस लुटा सकते हो। आपसे किसी ने दैन तलब किया है तो आपका दोस्त है, आपने कहा यार जब चाहे वापस लुटा देना, तो दैन वापस करना वाजिब है या नहीं है? वक्त मुअय्यन नहीं है तो किसी वक्त में आपने लुटाना है, मगर वो वक्त
मुअय्यन नहीं है। तो वो जमी वाजिबात जो किसी वक्त में अंजाम दिए जाते हैं, जिनको अंजाम तो वक्त के अंदर दिया जाता है, मगर वक्त मुअय्यन नहीं है, वो सारी मिसालें आएंगी किसके लिए? ज़रूरी मुंतशिरा के लिए। 4 किस्में हमने आपको बयान कर। उसने क्या मिसाल दी है मंतिक वाले ने? कुल्लु इंसान मुतनफ़िस बिल ज़रूरत फी वक्त मा। तनफ़ुस के लिए घड़ी की तरह, घड़ी की लिहाज से कोई वक़्त मुअय्यन नहीं है कि इस लम्हे या इस सेकंड में आपने सांस लेना है, इस सेकंड में या इस लम्हे में आपकी सांस को बाहर खारिज करना है। वक़्त मुअय्यन नहीं है आपके लिए। तो ज़रूरत की 4 किस्में आप तक पहुँच गई हैं, इससे ज़्यादा आप तक नहीं कर सकता हूँ। तर्जुमा करने की गुंजाइश है? अरे किधर इस तर्जुमा कर जा रहा है? नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौलहु, मुसन्निफ का कौल, बे कैफियत निस्बत है। निस्बतुल मामूल इलल मौजू है। महमूल की मौजू की तरफ जो निस्बत होती है, सवाउन कानत इजाबियतन और सल्बियतन, इजाबी हो या सल्बी हो, ये निस्बत तकून ला महालता मुकय्यफतन। ला महाला इस निस्बत की कोई कैफियत होती है, ठीक है। कहाँ होती है इसकी कैफियत? फी नफ्सिल अम्र वल वाक़ि, आलम वाक़े में, आलम नफ्सिल अम्र के अंदर इस निस्बत की कोई हकीकत होती है। वो हकीकत इसकी हकीकी कैफियत होती है। आलम नफ्सिल अम्र क्या है, इसकी तशरीह गुजर चुकी है। अच्छा, तो आलम वाक़े के अंदर निस्बत की जो कैफियत होती है, निस्बत की जो वाक़इयत होती है, निस्बत की जो हकीकी कैफियत होती है, वो क्या है? 3 हाल से खाली नहीं है। नंबर 1 गिरो अल ज़रूरत, ये अल तमाम इस्तिबा है। अवल इम्तिना अवल इम्कान, ये 3 चीज़ें जो हैं ये क्या है? ज़रूरत, इम्तिना, इम्कान। ये 3 चीज़ें क्या हैं? निस्बत की कैफियत। दवाम नहीं है, दवाम नहीं हो सकता। तमाम इस्तिबा है, तमाम जिहात है, ठीक है ना। जिहात में और मादे में फ़र्क है। मुसन्निफ अभी मादा समझाना चाहता है कि इस इबारत में क्या बयान करना चाहता है वो? मादा, ना कि जिहात। अच्छा, आलम नफ्सुल अम्र के अंदर जो होता है वो मादा होता है, वो जिहात नहीं होती। दवाम जिहात में शुमार किया जाता है, दवाम मादे में शुमार नहीं किया जाता। अच्छा, तो आलम नफ्सुल अम्र के अंदर उस निस्बत की जो कैफियत है, या वो ज़रूरत होगी, या इम्तिना है, ये इम्कान है। फ़तिल कल कैफियतो अल वाक़िअतो फ़ी नफ्सिल अम्र, आलम नफ्स अम्र के अंदर निस्बत की जो वो वाक़ई कैफियत है, ठीक है। निस्बत की आलम नफ्सिल अम्र के अंदर, आलम हक़ाइक़ के अंदर निस्बत की जो वाक़इयत है, ये उसने लफ्ज़ लिखा है ना कैफियत अल वाक़इया, तो आप इसको आसान लफ्ज़ उर्दू में ले आओ। निस्बत की आलम नफ्सुल अम्र के अंदर जो वाक़इयत है, तो सम्मा मादातुल कसिया, आलमुल नफ्सुल अम्र के अंदर निस्बत की पाई जाने वाली उस वाक़इयत को, उस हकीकत को क्या बोलते हैं? मादातुल कसिया। तभी मादातुल कसिया बयान कर रहा है, तो तमाम कहाँ से आ गया इसके अंदर, ठीक है ना। उसके भी करें, मतलब इसके अलावा इम्तिना इम्कान ले आओ। इम्तिना तो पैदा है, इम्कान क्या है? मतलब ज़रूरत है। बाज़ नुस्खों के अंदर लफ्ज़ इम्कान लिखा हुआ है, बाज़ नुस्खों में लफ्ज़ इम्कान नहीं लिखा हुआ, गैर ज़ालिक का इशारा इम्कान के तरफ। मुहिम ये कि इस इबारत के अंदर वो जिहाद नहीं बयान कर रहा, इस इबारत के अंदर वो मादा बयान कर रहा है। तो मादा कभी भी दवाम में से नहीं हो सकता, मतलब जिहाद दवाम जिहाद है,
दवाम मादा नहीं है। तो जो है दरअसल अक्स होता है, यानी हम दरअसल एक तरह आईना होता है किसी असल उसी हकीकत से, यानी हकीकत में क्या है, ये जो मामूल है ये मौजू के लिए, यानी उसके आपस में जो कैफियत है ये है। तो हो सकते हैं मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि कुल्लु इंसानिन नातिकुन, ये जो नातिक है जिस तरह आपने फरमाया कि ये दरअसल जो हकीकत में जो सूरत हाल है, अगर हम ज़रूरत की जो कह लगाएं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपस में जो उनकी जो निस्बत है वो क्या ज़रूरत की है, या अगर इम्तिना की हो, मतलब हम कहें कि जहाँ पर मतलब मुमतने हो सकता है, मुमतने होता है, या जहाँ पे इम्कान है, हम कुल इंसान ज़ाहिकुन, अब ये ज़हक है उसके लिए क्या है इम्कान, यानी हम इम्कान के साथ लफ्ज़ के साथ क्या बयान कर रहे होते हैं, उन दोनों की आपस में निस्बत को। तो दवाम भी तो मतलब जो हकीकत में दवाम हो उसको हम दवाम के लफ्ज़ के साथ बयान कर रहे हैं। आपके सवाल का ताल्लुक मादे और जिहद के दरमियान फ़र्क से है। आप ये पूछना चाहते हैं या आप ये समझना चाहते हैं कि मादा में और जिहद में फ़र्क क्या है। तो आप ये दर्स कल का जो है वो सुनेंगे, तो जो नासाज है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर सकता, मेरी मदद के लिए। तो पूरी तफसील डिटेल पहले दे चुका हूँ जी। मादातुल कज़िया क्या होता है, जिहतुल कज़िया क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। जैसे ही आपको इन दोनों का फ़र्क समझ आ जाएगा, फौरन ही आपको जो है वो इसकी वजाहत मालूम हो जाएगी। आप जो सवाल उठा रहे हो उस सवाल के उठाने की वजह यह है कि आपके जहन में मादा और जिहद के दरमियान फ़र्क का अभी इतला नहीं है। अजी वही बात जी। तो आप इतला हासिल करें, वो सीडी करके सुन लें, आपको जो है वो आपका जवाब मिल जाएगा। इसलिए नुक्ता मैंने रिपीट नहीं किया। अच्छा, सुम्मा का युसर रहो फिल कज़ियत, कज़िये के अंदर तसरीह की जाती है। तसरीह किसे कहते हैं, यानी तलफ़ुज़ कर दिया जाता है, उसको जिक्र कर दिया जाता है। किस चीज़ को, बिअन्ना तिल्कल निस्बतु मुकय्यफ़तुन फ़ी नफ्सिल अम्र बिकैफ़ियतिन कज़ा, कि भाई नफ्सुल अम्र के अंदर निस्बत की जो कैफियत है वो कैफियत कज़ा ये है। तो लफ्ज़ों में आप बयान कर रहे हो, लफ्ज़ों में किसको बयान कर रहे हो, उसी कैफियत को जो आलम नफ्सुल अम्र के अंदर उस निस्बत की है। अच्छा, जब उसी को बयान कर रहे हो किस में, लफ्ज़ों में। अब लफ्ज़ों में आपने जो कुछ बयान फल कर दिया तो ही नाज़िर तो सम्मा मुवज्जहतन, तो ये जो लफ्ज़ों में आपने जो कुछ बयान किया है इसको जिहद कहते हैं। और जिस कज़िये के अंदर जिहद का आप तसराहतन जिक्र करते हो उस कज़िये को मुवज्जह कहते हैं। वक़द ला युसर्रहु बिज़ालिक, और कभी जो है वो जिहद को कज़िये के अंदर सराहतन जिक्र नहीं किया जाता। फतुसम्मा अल कज़िया मुतलका, तो जिस कज़िये के अंदर जिहद का तलफ़ुज़ नहीं होता, जिहद की सराहत नहीं होती, उसे मुतलक कहते हैं। वल्लफ्ज़ु अद्दालु अलैहा, और वो लफ्ज़ जो उस जिहद पे दलालत करता है, सॉरी अलैहा उस निस्बत की वाक़ई कैफियत पर, यानी मादा पर असल मादातुल कज़िये पर जो लफ्ज़ दलालत करता है। फिर कज़िया अल मलफूज़ा थे, कज़िया मलफूज़ा में, कज़िया मलफूज़ा जो ज़बान से आपने सादर किया है, वल सूरत अल अक़लिया थे, सूरत अक़लिया जो कज़िये का आपके ज़हन में तस्वुर है। इन दोनों के अंदर आपने एक लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है उस मादे की तरफ इशारा देने के लिए। अद्दालत अलैहा, सूरत अक़लिया के अंदर जो लफ्ज़ आपने तस्वुर किया है, अलैहा उस मादे पर दलालत के लिए। फिर कज़िया मक़ूला, कज़िया माक़ूला में युसम्मा, इस लफ्ज़ को, किस लफ्ज़ को, जो मादे की तरफ इशारा करने के लिए आपने तलफ़ुज़ किया है या ज़हन में तस्वुर किया है, आसान तो इस लफ्ज़ को युसम्मा जिहतुल कज़िया, इसको जिहतुल कज़िया कहते हैं। तो अब दो चीज़ें आ गई, एक मादातुल कज़िया, एक जिहतुल कज़िया। और हैरत का जवाब ये है कि आप जिहतुल कज़िया मादातुल कज़िया का फ़र्क दोबारा ज़हन नशीन कर लें। फ़इन ताबक़त अल जिहतु अल मादाता, अगर ये तुम्हारी जिहत उस मादे के मुताबिक है, सदक़त अल कज़ियतु अल मुवज्जहतु, कज़िया मुवज्जह सादिक होगा। जैसे कुल्लु इंसान हैवान बिल ज़रूरत है, तो हमने बिल ज़रूरत ये लफ्ज़ तलफ़ुज़ान सराहतन बयान किया है और इशारा देना चाहते हैं कि भाई हैवान और इंसान के दरमियान जो निस्बत है
عالم نفس الامر کے اندر اس نسبت کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ضرورت ہے، اور اس عالم نفس الامر کے اندر اس نسبت کی جو حقیقت اور واقعیت ہے، اس واقعیت کی طرف صراحت دینے کے لیے ہم نے بقاعدہ لفظوں میں اس کی صراحت کر دی۔ اب یہ جو لفظ ہے، صراحت جہت کی جاتی ہے، صراحت مادے کی نہیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وَإِلَّا، اور اگر یہ جہت اس مادے کے مطابق نہیں ہے، کاذبات، تو محصورہ کاذبہ ہو جائے گا۔ جیسے کل انسان حجر، انسان اور حجر کے درمیان جو نسبت ہے، یہ نسبت کیا ہے جی؟ اتنا کی ہے، اصلی اتنا کی ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے بے ضرورت کہا ہے۔ ضرورت ہے، مثال بدل دینی چاہیے، مثال بدی ہی ہونی چاہیے۔ اچھا، قول مصنف کا قول، یہ کل کا درس ہے جی، یہاں تک کل کا درس ہے، آج کا درس یہاں سے شروع ہونے لگا۔ قولہ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا، فیہا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ فی القضیہ تھی، فی القضیہ محصورہ تھی، قضیہ محصورہ کے اندر آپ نے جو حکم لگایا ہے، محمول کا موضوع کے افراد کی طرف جو اسناد دیا ہے، وہ اسناد، وہ حکم بے ضرورت نسبت، نسبت کی ضرورت کا ہے۔ اے قد یکون الحکم فی القضیۃ الموجہۃ، قضیہ موجہہ کے اندر قد یکون، کبھی جو حکم لگایا جاتا ہے، بِأَنَّ نسبت الثبوتیۃ او السلبیۃ، کہ وہ نسبت چاہے ثبوتیہ یا سلبیہ ہے، یہ کیا ہے جی؟ ضروری ہے۔ کس کے لیے ضروری ہے؟ یہ اس موضوع کے مطلب موضوع کا جو فرق ہے اس کی، ہاں، محمول موضوع کے فرد کے لیے ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ موضوع اور محمول کے درمیان یہ نسبت ضروری ہے، محمول موضوع کے فرد کے لیے ضروری ہے، یعنی موضوع اور محمول کے درمیان یہ نسبت ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب ضروری کی تشریح دیتا ہے، ضروری کسے کہتے ہیں؟ آئے ممتنعۃ الانفکاک عن الموضوع، کہ یہ نسبت جو ہے اس کا اپنے موضوع سے، یا یہ جو محمول ہے اس کا اپنے موضوع کے فرد سے جدا ہونا ممتنع ہے۔ ضروری کا مطلب عدم الانفکاک۔ جو آپ بار بار مطلب آپ کہہ لگا رہے ہیں کہ مطلب یعنی موضوع کے افراد کے لیے یہ محمول کیا ہو؟ ضروری ہو۔ ضروری، اگر ہم افراد کی مساجد کی قید نہ لگے، ہم ڈائریکٹ کہیں کہ یہ محمول جو ہے یہ ضروری اس کے لیے، موضوع کے لیے، تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، مطلب کوئی ہونا نہیں۔ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تو بھی ٹھیک ہے۔ تو دراصل میں جو ہے وہ ایک پیچھے تشریح دے چکا ہوں، اس تشریح میں جو ہے وہ جب قضیہ محصورات کی ہم نے تقسیم دی تھی، تو اس تشریح کے اندر موضوع جو ہے کبھی محمول اس موضوع کے مفہوم کی طرف جاتا ہے، کبھی محمول کا اسناد موضوع کے مصداق کی طرف جاتا ہے، کبھی محمول کا اسناد موضوع کے ذہنی مفہوم کی طرف جاتا ہے، کبھی محمول کا اسناد موضوع کے خارجی افراد کی طرف جاتا ہے۔ یہ دو کیٹیگری ہیں، کہاں بیان ہو چکی ہیں؟ اس درس میں یہ دو قسمیں بیان ہو چکی ہیں۔ اچھا، تو یہ جو میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں نا، اس لیے رپیٹ کر رہا ہوں، اگر میں صرف اتنا کہہ دوں کہ محمول موضوع کے لیے ضروری ہے، تو موضوع کے لیے ضروری ہے، تو موضوع میں لفظ موضوع تو شامل ہے، چاہے محمول ذہنی مفہوم کی طرف جائے اس کو بھی شامل ہے، اس کے مصداق کی طرف جائے اس کو بھی، یہ عبارت ہے تعبیر تمہاری شامل ہے۔ اب واضح ہو گئی بات؟ تو وہ پچھلا حوالہ جو ہے نا، اس کو بار بار جو ہے میں تبلیغ دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو کلیئر ہو جائے۔ محمول کا اسناد موضوع کے مفہوم کی طرف جائے تو اسے قضیہ طبیعیہ کہتے ہیں، اس کے مصداق کی طرف جائے تو اسے قضیہ محصورہ کہتے ہیں، اور بحث کس کی چل رہی ہے؟ محصورات کی چل رہی ہے۔ تو ویسے تعبیر غلط نہیں ہے، تعبیر ٹھیک ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت ہے یہ نسبت ضروری ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں محمول موضوع کے لیے ضروری ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں محمول موضوع کے مصداق کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو آخری تعبیر ہے نا، یہ سب سے زیادہ سلیس، جس کے اندر کسی قسم کا اجمال نہیں ہے، اشتباہ بالکل نہیں ہے۔ علی احد اربعۃ اوجہن، یہ جو محمول موضوع کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس ضرورت کی 4 قسمیں ہیں۔ تعلق سمجھ میں آ گیا عبارت کا؟ یہ جو نسبت ضروری ہوتی ہے
یہ نسبت ضروریہ جو ہے یہ 4 وجوہات پر تقسیم ہوتی ہے. الاول پہلی وجہ یا پہلی قسم اس ضرورت کی، انہا وہ نسبت ضروری ہے مادام ذات الموضوع موجودتاً جب تک موضوع کی ذات. اب ذات سے مراد فرد ہے، ذات سے مراد کون ہے؟ فرد. موضوع کا فرد یعنی موضوع کا مصداق جب تک موجود رہے گا تب تک یہ معمول اس کے لیے ضروری رہے گا. جیسے کل انسان حیوان بالضرورت ہے، جب تک انسان کا وہ فرد رہے گا تو حیوان کا معمول اس کے لیے ضروری رہے گا. تو زید کے لیے، زید جو کہ انسان کا مصداق ہے، اس کے لیے حیوانیت کی نسبت ضروری ہے اور ذاتی طور پہ ضروری ہے، بالضرورت ہے. اور دوسری مثال اس نے سالبہ کی دی ہے، ولا شیء من الحجر من الانسان بحجر بالضرورت ہے. کوئی بھی انسان حجر نہیں ہے اور انسان کا حجر نہ ہونا بھی ضروری ہے. جب تک انسان کا فرد رہے گا اس سے حجر کی نسبت سلب رہے گی اور یہ سلب ہونا ضروری ہے. فتسمى القضیۃ حینئذ ضروریہ مطلقہ، اس کا نام ضروریہ مطلقہ ہے، یا دوسرا نام کیا بولا ہم نے؟ ضروریہ ذاتی ہے. اچھا، لے اجتماعها علی الضرورت، اس کو آپ نے ضروریہ اس لیے کہا ہے چونکہ اس کے اندر ضرورت، یہ قضیہ ضرورت پر مشتمل ہے. اس کو ضروریہ اس لیے بولا ہے چونکہ یہ قضیہ ضرورت پر مشتمل ہے، یعنی اس میں معمول موضوع کے لیے ضروری ہے. اور مطلقہ کیوں بولا ہے؟ یہ تسمیات بیان کر رہا ہے. اور اس کو آپ نے مطلق کیوں بولا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ عدم تقیید الضرورت بالوصف اول وقت، کیونکہ یہاں ہم نے قید نہیں لگائی ہے کہ یہ معمول اس موضوع کے لیے ضروری ہوگا کسی وصف کی، وصف کے واسطے کی صورت میں، یا کسی وقت کی قید کی صورت میں. کسی وصف کو، کسی وقت کو ہم نے قید نہیں بنایا ہے، شرط نہیں بنایا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو مطلقہ بولتے ہیں. اطلاق مد مقابل اس آنے والے قضیے کے کہ جو مقید ہے، کس کے ساتھ؟ مقید ہے یا مشروط ہے، کسی وصف کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ. الثانی دوسری قسم، انہا ضروریت ما دام الوصف العنوانی ثابتا لذات. ذات کا ترجمہ کیا کرو گے؟ افراد. موضوع کے جو افراد ہیں ان کے لیے یہ معمول ثابت رہے گا، ضروری رہے گا. اس کا ضروری ہونا ثابت ہے، مگر کب ثابت ہے ضروری ہونا؟ ما دام الوصف العنوانی ثابتا، جب تک وصف عنوانی. وصف عنوانی سمجھ گئے ہو؟ وہی جو آپ نے فرمایا واسطہ، یا ہم جس کو وہی جو واسطہ ہے اسے وصف عنوانی کہتے ہیں. اب یہاں کو قضیہ محصورہ جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. مثلا کل انسان حیوان آپ نے بولا ہے، تو اس کے اندر بظاہر آپ کو 2 نظر آ رہے ہیں، انسان اور حیوان، جبکہ در حقیقت 3 ہیں، کیونکہ قضیہ محصورہ ہے. ایک ہے محمول وہ حیوان، ایک ہے انسان جو کہ موضوع ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس کے افراد، جن افراد کی طرف آپ نے حیوانیت کا اسناد دیا ہے. وہ کہتا ہے دار حقیقت قضیہ محصورہ میں جو موضوع ہوتا ہے نا، وہ لفظ انسان جو ہے یہ موضوع نہیں ہے. دراصل موضوع وہی فرد ہے. اور یہ جو آپ نے لفظ انسان یہاں رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، یہ ہے وصف عنوانی، اس کو العنوان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے 3 لفظ انہوں نے باقاعدہ اصطلاحاً وضع کر رکھے ہیں. وصف المحمول، وصف الموضوع اور موضوع. جب موضوع کا لفظ بولیں گے زید کی طرف اشارہ ہوگا، وصف الموضوع بولیں گے انسان کی طرف اشارہ ہوگا، وصف المحمول بولیں گے محمول کی طرف اشارہ ہوگا. کل انسان حیوان، حیوان وصف المحمول ہے
इंसान वास्फुल मौजू है, जायद मौजू है। इससे ज्यादा और आसान क्या करूं यार। ये जो वास्फुल मौजू है ना, इसको वास्फे उन्वानी भी कहते हैं, सिर्फ लफ्ज उन्वान भी कहते हैं। तो गोया 3 लफ्ज हैं, वास्फुल मौजू, वास्फुल उन्वानी और उन्वान। 3 लफ्ज इस एक शय के लिए बोले जाते हैं। वो क्या है? कज़िया महसूरा के अंदर आप वो जो कुल्ली लेकर आते हो ना अफराद की तरफ इशारा देने के लिए, उस कुल्ली के लिए 3 लफ्ज बोले जाते हैं। कभी इसको उन्वान कहा जाता है क्योंकि ये अपने अफराद का उन्वान होता है, ठीक है ना। उन्वान क्या होता है? आईना होता है। तो आप हुक्म जो लगा रहे हो, किस पे लगा रहे हो? इस उन्वान के अफराद होता है। अच्छा, तो इसको वास्फ़े उन्वानी या वास्फ़ुल मौजू क्यों कहते हैं? क्योंकि दरअसल मौजू है ज़ायद बकर खालिद, ये उसका ही वस्फ है, ठीक है ना। ये कुल्लो कातिब मुतहर्रिकुल असाबे, कातिब क्या है? वस्फ है किसकी? ज़ायद की। तो मुतहर्रिकुल असाबे भी तो वस्फ है ज़ायद की। हमने उस वस्फ के साथ फिर क्या कर गई है? वास्फुल महमूल। इसके साथ हमने क्या कर गई? वास्फुल। तो कातिब भी ज़ायद की सिफत है, मुतहर्रिकुल असाबे जो कि महमूल है वो भी ज़ायद की सिफत है, मगर उसको हमने सिफत को वास्फुल महमूल, इसको वास्फुल मौजू, और ज़ायद खुद क्या है? मौजू। जब तक वस्फ़ उन्वानी साबित रहेगी ज़ायद के लिए, तब तक ये महमूल ज़रूर रहेगा। कुल्लु कातिब मुतहर्रिकुल असाबे बिल ज़रूरत है मादामा कातिबन, और दूसरी साबित मिसाल है। फ़तुसम्मा मशरूता आमा, इसका नाम मशरूता आमा है। क्यों ये नाम रखा है? कहते हैं इश्तिरातिल ज़रूरत बिल वस्फ़े, भाई ज़रूरत जो है ना ये मशरूत है वस्फ़ उन्वानी के साथ। तो वस्फ़ उन्वानी इस ज़रूरत के लिए क्या है? शर्त की हैसियत रखती है। वस्फ़ उन्वानी क्या है? वो शर्त है। शर्त पूरी होगी तो ये महमूल ज़रूरी होगा, शर्त पूरी नहीं होगी तो महमूल ज़रूरी नहीं होगा। और आमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेकौन हाज़िल क़ज़िया आमा मिनल मशरूतात ख़ास्सा कमा सा यजीओ। थक चुका हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।